الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کراتا میری تقریر کو تو روشنی دے. الہی بیڑا پار ہو جائے گر تو کرم کرے. الہی بیڑا پار ہو جائے گر تو کرم کرے. بے زباں پہ ایسی بات جو دل پر اثر کرے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان پر بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ آئی تھی. کچھ باتیں رہ گئی تھی تو آج کے اس جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے میں ہم نے اپنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر مکمل کی تھی، داڑھی کے اوپر. ہماری جو آخری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے چہروں پر داڑھی ہونی چاہیے. ایک مسلمان کے چہرے پر، ایک ایمان والے کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، کیونکہ داڑھی جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ جن سے محبت ہوتی ہے وہ ان کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو دنیا دار کے کسی ایکٹر سے اگر محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے طرز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا بال رکھنا چاہتا ہے، اس کے جیسا لباس پہننا چاہتا ہے، اس کے جیسا چپل اور جوتا پہننا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی طرح داڑھی رکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں کن سے محبت ہے؟ کہیے ہمیں کن سے محبت ہے؟
ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے. کریں گے سارے حضرات؟ جی. داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کو کترو اور داڑھی کو بڑھاؤ. داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کترنا چاہیے. اور داڑھی جو ہے یہ اسلام کا ایک شعار ہے, ایک پہچان ہے. داڑھی ایک پہچان ہے مسلمانوں کے لیے اور ایمان والے کے لیے کہ مسلمان لوگ داڑھی رکھتے ہیں, غیر قوم داڑھی نہیں رکھتے, یہود و نصارہ داڑھی نہیں رکھتے. تو یہ ہماری پہچان ہے, ہمیں اپنی پہچان کو کھونا نہیں ہے. ہماری پہچان ہے, ہمیں اس کو کھونا نہیں ہے. تو تمام لوگ یہ کوشش کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. کہیے آمین کہیے. کریں گے اس پر عمل؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو اجمیر میں ہے, ان کے ایک مرید ان کے پاس آئے, کہنے لگے کہ روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں, نماز پڑھتے ہیں کوئی پریشانی نہیں, زکات دیتے ہیں کوئی پریشانی نہیں, حج عمرہ کرتے ہیں کوئی پریشانی نہیں, بس تھوڑی سی داڑھی رکھنے میں دقت ہوتی ہے. کن سے کہا؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا جواب دیا وہ جواب یہ تھا, خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اپنے مرید کو انہوں نے جواب دیا کہ داڑھی رکھنے سے ہماری عزت جو ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں ہو سکتی ہے. ہم دنیا والے ہمیں ہینڈسم کہہ سکتے ہیں, دنیا والے ہمیں چہیتا اور خوبصورت کہہ سکتے ہیں, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوبصورت نہیں کہہ سکتے. اور ہم داڑھی رکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گالوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالوں پر قربان کر دیا. ہمیں دنیا کی سرخروئی نہیں چاہیے, ہمیں آخرت کی سرخروئی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت میں اچھا کہہ دے وہ اچھا. خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ, وہ ہمیشہ ایسے اپنی داڑھی پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ایسے پکڑ لیتے تھے, کہتے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. لوگ بڑا تعجب کرتے تھے, بھائی تم داڑھی پکڑتے اور کہتے ہو اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اتنا آسان ہے کیا؟ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج زکات دیتے ہیں, سمجھ میں تو آتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے گا. تم داڑھی پکڑے رہو اور کہو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا, ایسے تو دن رات لوگ پکڑ کے بیٹھے رہے. خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت میں جب اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت جب ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا سے کیا لے کر آئے, دنیا سے کیا لے کر آئے ہو, تو میں کہوں گا کہ میں کچھ نہیں لایا, میں کچھ نہیں لایا ہوں, بس ایک داڑھی لے کر آیا, یہ بس داڑھی لے کر آیا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی یہ کہیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا, اسی لیے میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. سوچیے آخرت کا یقین کس قدر ان کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں میں سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ انگلی سے اشارہ کیے تو چاند دو ٹکڑے ہوئے.
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद दो टुकड़े हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उंगली फिरा रहे हैं तो चांद आसमान पर फिर रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर उंगली यूं फिरा रहे हैं तो चांद आसमान पर फिर रहा है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से गुजर रहे थे। अबू जहल अपने तमाम दोस्तों के साथ रास्ते में बैठा हुआ था और शराब की महफिल लगी हुई थी, लोग शराब पी रहे थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इसी जगह से हुआ। जैसे ही अबू जहल और उसके साथियों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अबू जहल ने भद्दी भद्दी और गंदी गालियां देना शुरू कर दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू जहल ने भी गालियां दी और उनके जो दोस्त उनके साथ शराब पीने में मसरूफ थे उन तमाम लोगों ने मिलकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजर गए। उनको जवाब नहीं दिया पलट कर कोई, मगर जब अबू जहल और उनके दोस्तों ने गाली देने में इंतहा कर दी और यहां तक के गाली की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ कर दी, तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास आए, अबू जहल के पास तशरीफ लाए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अबू जहल तुम चाहे मुझे जितना भी सता लो, तुम चाहे जितना मुझ पर मुझे गालियां दो, मुझ पर पत्थर बरसाओ, मुझ पर जबरो तशद्दुद करो, मगर ये जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा, मैं लोगों से ये कहता रहूंगा या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। मैं इस दावत से कभी पीछे नहीं हट सकता, चाहे तुम मुझे कितना भी सताओ, कितना भी मारो, कितना भी मुझ पर जबरो तशद्दुद करो, मैं अपनी दावत से बाज नहीं रह सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर आगे चले गए। अबू जहल अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा, कहा कि ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे पास आसमान की खबरें आती है, चलो आज इनको आजमाते हैं, चलो सब लोग उठकर चलो आज इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज आजमाते हैं। और सब लोग अपने हाथ में कुछ कुछ ले लो, कंकरी ले लो, मिट्टी ले लो, पत्थर ले लो, जिसके हाथ में जो मिल जाए वो अपनी मुट्ठी में ले लो। आज हम इस नबी को आजमाते हैं, आज हम देखते हैं कि इस नबी में क्या ये नबी कहता है कि मेरे पास आसमान की खबरें आती है, तो क्या ये सही है या गलत। आज इनका इम्तिहान लेने का और इनको आजमाने का एक अच्छा मौका है। अबू जहल और उनके तमाम साथियों ने जिनके हाथ में जो मिला वो ले लिया, किसी ने अपने हाथ में मिट्टी लिया, किसी ने अपनी मुट्ठी में पत्थर लिया, किसी ने कंकरी ली, किसी ने खजूर लिया, किसी ने खजूर का बीज लिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़े और आगे से जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में है और चारों तरफ से अबू जहल और उनके दोस्त, अबू जहल और उनका दोस्त चारों तरफ से है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में है। और अबू जहल ने बाआवाज़ बुलंद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ऐ मोहम्मद, तू ये कहता है कि तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का रसूल है, तेरे पास आसमान से खबरें आती है, तू गैब की खबरें बतलाता है, जरा ये तो बतला कि हमारे हाथों में क्या है, हमारी मुट्ठी में क्या है, हमारे मुट्ठियों में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, जरा ये तो बतला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो कोई कमाल नहीं है कि मैं ये बतला दूं कि तुम्हारे हाथ में किया है और तुम्हारे हाथ में किया है और तुम्हारे हाथ में किया है, ये कोई कमाल नहीं है। मैं जानता हूं कि किसी के हाथ में कंकरी है, किसी के हाथ में पत्थर का टुकड़ा है, किसी के हाथ में मिट्टी है, किसी के हाथ में खजूर है, तो किसी के हाथ में खजूर का बीज है। मैं ये जानता हूं, कमाल तो ये है कि जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो ये बतलाए कि मैं कौन हूं। कमाल तो ये है कि मैं
जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो ये बतला दो कि मैं कौन हूं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तमाम लोगों की मुट्ठी भारी होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे तमाम लोगों की मुट्ठियां खुलने लगी। अबू जहल और उनके साथियों के हाथ में, जिनके हाथ में भी जो जो चीजें थी, सबसे बैठ वक्त एक ही आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात है। ये बताना कमाल नहीं है कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, बल्कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो ये बतलाए कि मैं कौन हूं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको जिनको हिदायत दी, जिनकी किस्मत में ईमान लिखा हुआ था, इस वाक़ये के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीमे को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, अल्लाह ने उनको ईमान नहीं दिया और अबू जहल ये कहकर चला गया कि इससे बड़ा जादूगर तो कोई नहीं हो सकता। उसकी किस्मत में ईमान नहीं लिखा हुआ था। अबू जहल ने कहा क्या कहा कि इससे बड़ा जादूगर तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े किए थे, उस वक्त भी लोगों ने जिनकी किस्मत में ईमान लिखा हुआ था, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, उन्होंने कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन यु'रिदू व यक़ूलू सिह्रुन मुस्तमिर व कज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िम। इसमें बयान किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है, मोहम्मद से झूठा तो कोई हो नहीं सकता। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमाते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मगरिब का वक्त हो चुका था, सूरज गुरूब हो चुका था, सूरज डूब चुका था और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे वक्त में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी असर की नमाज कज़ाओ। आज मेरी असर की नमाज छूट गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली तुम्हें नमाज पढ़ी क्यों नहीं असर। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे एक काम देकर फला जगह पर भेजा था और आपने कहा था कि दूसरी किसी चीज में मशगूल नहीं होना, तुम खाना नहीं पीना नहीं, किसी से बात नहीं करना जब तक कि तुम उस काम को करके मेरे पास ना आ जाओ। मैंने ऐसा ही किया, सफर लंबा था, मैं वहां पर गया, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और अब देख रहा हूँ कि सूरज गुरूब हो चुका है और मेरी असर की नमाज छूट गई। सूरज डूब गया, मेरी असर की नमाज छूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में थे, 1400 सहाबा इकराम, 1400 सहाबा इकराम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे। ऐसे वक्त में हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज छूट गई, सूरज गुरूब हो गया, अब मैं कैसे नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से सूरज की तरफ इशारा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से सूरज की तरफ इशारा किया, एक मर्तबा इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा इकराम ने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम हमारी नजरों के सामने डूबा हुआ सूरज भी निकल गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हजरत अली से कहा कि अली लो पढ़ लो असर की नमाज, तुम अपनी असर की नमाज पढ़ लो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
नमाज में मशगूल हो गए, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधी और नमाज में मशगूल हो गए। बहुत ज्यादा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे, इस बात पर रो रहे थे कि हमारी नमाज की वजह से डूबा हुआ सूरज भी निकल आया। और उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में मशगूल हो गए, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। 1400 सहाबाए किराम देख रहे हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और अभी तक सूरज फिर दोबारा डूबा नहीं। एक देहाती सहाबी था, 1400 सहाबाए किराम में एक देहाती सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के इशारे से सूरज निकल तो आया है मगर वो डूबेगा कब? आज के इशारे पर सूरज निकल तो आया है मगर अब वो डूबेगा तब? रात का सन्नाटा हो चुका था, ऐसे वक्त में सूरज बाहर आया, सूरज बाहर निकल आया, अब वो सूरज डूबेगा कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती सहाबी से फरमाया कि मुझसे यह न कहो कि सूरज कब डूबेगा, अली से पूछो कि वो अपनी नमाज कब खत्म करेगा। हजरत अली से पूछो कि वो अपनी नमाज कब खत्म करेगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। तो क्या ऐसे नबी से हमें मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? ऐसे नबी से हमें मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? ऐसे नबी की हर अदा को हमें अपनाना नहीं चाहिए? अपनाना चाहिए कि नहीं? कहिए नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहिए नबी की कोई सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तुकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। एक किताबुल्लाह को, एक अल्लाह की किताब को मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जाता हूँ और एक तुम्हारे नबी की सुन्नत को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। तुम जब तक इसको मजबूती के साथ थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। जब तक तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़े रहोगे, उस पर अमल करते रहोगे, तुम गुमराह नहीं हो सकते। तो लिहाजा दोस्तों, हमें किसी दुनियादार के तरीके को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारी कामयाबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है, न कि दुनियादारों के तरीके में। इसीलिए हमें इस दुनिया की रंगीनियों में, इस दुनिया की दिलफरेबियों में, इस दुनिया की चमक दमक में, इस दुनिया की कशिश में अपने आप लुभाना नहीं है, अपने आप को उनके हवाले नहीं करना है, बल्कि अपनी जिंदगी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर निछावर। जब हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेंगे, हमारी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल होगा, फिर हम गुमराह नहीं होंगे और नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, उनके तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, वो कभी नाकाम नहीं हो सकते। और सहाबाए किराम इसकी बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। सहाबाए किराम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लिया। सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया और सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत को छोड़ा नहीं, किसी भी सुन्नत को पसे पुष्ट नहीं डाला। तो अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम को कामयाब किया और ऐसा वैसा कामयाब नहीं किया, ऐसा कामयाब किया सहाबाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने कि कयामत तक रहने वाली किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के लिए खुशखबरी जारी फरमा दी। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गए और ये अल्लाह से राजी हो गए। वक्त गुंजाइश है और बात करें, 5 मिनट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने खुतबे में पढ़ी थी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ईमान के बारे में बतलाया कि फरमाया कि तुम में से किसी भी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा, तुम में से किसी भी शख्स का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे महबूब ना हो जाऊं। किन किन चीजों से? जब तक कि मैं उनको उनकी जात से, उनके माँ बाप से और दुनिया की हर चीज से ज्यादा मैं उनको महबूब नहीं हो जाऊं, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब तक हमें दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। अपने माँ बाप से भी ज्यादा महबूब हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, अपने औलाद से भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें महबूब होना चाहिए, वन नास अजमाइन, और कायनात की हर चीज से ज्यादा अगर कोई चीज हमें महबूब होना चाहिए तो वह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक यहूदी का वाकया लिखा है। एक यहूदी मुल्क शाम में रहता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का किस तरह से गिरविदा हो गया। मुल्क शाम में रहता था और यहूदियों के यहाँ जिस तरह से हमारे यहाँ जुमा का दिन सबसे अफजल और काबिल एहतराम समझा जाता है, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार हमारे यहाँ माना जाता है। जुमा के दिन खास एहतमाम किया जाता है, गुस्ल किया जाता है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत कसरत से होती है, लोग मस्जिद में आते हैं, नमाजों का कसरत से एहतमाम करते हैं। तो ऐसे ही यहूदियों के यहाँ हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन जो होता है वो काबिल एहतराम दिन होता है यहूदियों के यहाँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक यहूदी मुल्क शाम में हर शनिचर के दिन वो तौरात पढ़ता था, तौरात निकाल कर वो पढ़ता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो यहूदी गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहना और उसके बाद तौरात पढ़ने के लिए बैठ गया। तौरात पढ़ने के लिए बैठ गया, जैसे ही वो तौरात खोलता है तो देखता है कि उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 जगह पर। तौरात में खोला किताब, देखा कि 4 जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है उस तौरात में। उसके बाद उसे गुस्सा आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम हमारी किताब में क्यों, हमारे नबी की किताब में मोहम्मद का नाम क्यों है। उसे गुस्सा आया, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को काटा और उसको जला दिया। उसने हमारे नबी के नाम को काटा और तंदूर में जला दिया। दूसरी मर्तबा फिर दूसरे हफ्ते को, दूसरे शनिचर को फिर जब वो गुस्ल किया और तौरात पढ़ने के लिए बैठा तो उसके बाद उसने देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरात में 8 जगह, पहली मर्तबा 4 मर्तबा नाम लिखा, उसने काट कर जला दिया। दूसरे शनिचर को तौरात खोलता है तो देखता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 8 जगह है। उसके बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आया, उसने फिर से उन तमाम नामों को काटा और उस नामों को काटने के बाद उसे आग में जला दिया। तीसरे शनिचर को उसने फिर गुस्ल किया, तौरात खोला, देखता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 12 जगह पे। कितनी जगह पे? 12 जगह पे। वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गिरविदा होने लगा कि आखिर ऐसा नबी कितना काबिल एहतराम और काबिल अजमत और कितना अफजल नबी है कि उसका नाम हमारी किताबों में है। हमने 4 मर्तबा काटा, 8 मर्तबा हुआ, 8 मर्तबा काटा, 12 मर्तबा हो गया। इसका मतलब वो अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब नबी है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गिरविदा होता चला गया और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का मुश्ताक हुआ। उसे बहुत ज्यादा शौक हुआ कि आखिर मैं देखूं उस नबी को कि वो नबी है कैसा, कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना महबूब बनाया है। चुनांचे वो अपने यहूदी उलमा के पास गया और उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, कैसे मिला जाए, कैसे मुलाकात हो। उसने अपने उलमा से पूछा, यहूदी उलमा से। तो उनके यहूदी उलमा ने ये कहा कि अल्लाह ताला कभी तुझे उनको देखना नसीब ना फरमाए और ना उनको तुम्हें देखना नसीब फरमाए। उसके बाद वो यहूदी समझ गया कि ये लोग हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ रहे हैं और ये हमारे उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं। ये हमारे उलमा झूठे हो सकते हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं हो सकते। उसके बाद उसने दूसरे लोगों से पता किया और उसके बाद उसने मदीना का सफर शुरू किया, अपने ऊंट को तैयार किया
अपना सारा सालाने सफर उस ऊंट पर बांधा और वो खुद तैयार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए मुल्क शाम से मदीना का सफर करने लगा। वो एक लंबा सफर किया ऊंट के जरिए से, थका हुआ था, परेशान था, भूखा था, कभी खुशी के मारे बहुत ज्यादा खुश हो जाता था, कभी रोने लगता था, कभी बेहोश हो जाता था, कभी उस पर रशी तारी हो जाती थी। वो एक परेशान हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए मुल्क शाम से मदीना की सरहद पर पहुंचा। मदीना की सरहद पर पहुंचा और उसके बाद उसने अपनी सवारी को एक खूंटे से बांधा, आराम करने लगा, थक गया था, थोड़ा सा आराम करने लगा। फिर उसके दिल में ख्याल आया, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आया हूँ, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। फौरन अपनी सवारी पर फिर सवार हुआ और फिर वहां से उसने सफर करना शुरू किया। मदीना में दाखिल हुआ। मदीना में दाखिल होते मदीना शहर सहाबियों का शहर था। सबसे पहले एक सहाबी से उनकी मुलाकात हुई, एक सहाबी से उनकी मुलाकात हुई का नाम हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत सलमान फारसी से उनकी मुलाकात होती है तो वो यहूदी ये समझता है कि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो उनके हाथ से पकड़ने लगता है, उनके हाथ से चूमने लगता है, उनके हाथ से बोसा देने लगता है और उसके बाद कहता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इस कदर गिरमिदा है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे समझकर मेरे हाथों को चूम रहा है, बोसा दे रहा है। मैं ये बात कैसे बतलाऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए इस यहूदी ने जो इतना लंबा सफर करके आया है, इतनी परेशानियों का सामना किया है, मुशक्कतों को उठाया है, भूखा रहकर उसने इतना लंबा सफर किया, मैं उसे ये बात कैसे बतलाऊं कि 3 दिन पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अगर ये बात मैं उनको कह दूं तो वो अपनी जान दे देगा। वो बार बार वो यहूदी कह रहा है कि आईना मोहम्मद मोहम्मद का है। हजरत सलमान फारसी परेशान है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं उसे जवाब दूं तो क्या जवाब दूं। बस मैंने अपने हाथ से मस्जिद नबवी की तरफ इशारा कर दिया कि वहां चले जाओ, वहां से मिल जाएगा। वो यहूदी फिर से अपने ऊँट पर सवार हुआ और मस्जिद नबवी की तरफ गया। मस्जिद नबवी में जैसे ही पहुंचा, देख रहा है कि पूरी मस्जिद नबवी सहाबा इकराम से भरी हुई है और सहाबा इकराम अफसरदा है, गमगीन है। वो यहूदी कहने लगा आईना मोहम्मद। उसने अपनी दास्तान सुनाई कि मैं मुल्क शाम से सफर करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आया हूँ, मुझे जल्दी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाओ। जब सहाबा इकराम ने देखा कि ये यहूदी मछली की तरफ से तड़प रहा है, वो भी सोचने लगे कि आखिर कैसे इनको बतलाया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि ये हम सहाबा इकराम जो बैठे हुए हम कितना गमगीन है, हम कितना परेशान है, पूरा मदीना रो रहा है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा, 3 दिन पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। वो यहूदी गिर गया जमीन पर और तड़पने लगा कि या अल्लाह, मैं जिस नबी की मुलाकात के लिए आया हूँ उस नबी की दीदार आज मुझे नसीब नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी मोहब्बत में खोट है, मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं। चुनांचे वो यहूदी तड़पने लगा जमीन पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको तसल्ली दी, उनको उठाया, उनको हौसला दिया। वो यहूदी कहने लगा कि अगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो उनकी कोई चीज है जो मुझे लाओ, मुझे दिखाओ उनकी कोई चीज। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आदमी भेजा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कपड़ा मंगवाया। वो यहूदी कहता है कि मेरी आंखों के सामने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा लाया गया। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को देखकर बेतहाशा उससे चिमटने लगा, उसे चूमने लगा, उसे बोसा देने लगा। अल्लाह की कसम, मैंने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को जब देखा तो उस पर 60 तेवंग लगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर 60 तेवंग लगे हुए थे। उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर लेकर जाओ। चुनांचे उस यहूदी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर लेकर गया। सहाबा इकराम उनके पीछे, हजरत सलमान फारसी उनके पीछे है। कहते हैं कि वो जब यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंचा तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मेरी मुलाकात नहीं तो मैं
उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे भी मौत दे दीजिए। सहाबा इकराम ने कहा कि हमारे आंखों के सामने ये यहूदी जमीन पर गिरा। हजरत अली कहते हैं कि मैं उसे जगाने के लिए गया कि शायद बेहोश हो गया हो, मैंने उसे हाथ दिया, मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मैं देखा कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका। यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिल में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।